Namaskar. Good afternoon everyone. Today in the master class organized by IHE20 with collaboration Indian Culinary Forum, I Dr. Chef Prem Ram is going to present a dish which belongs to Kumaon region of Uttarakhand. So this dish is very much popular, but now due to the time and all, what people will think this dish is the food of poor people initially, but they don't are aware of the health benefits of it. So let me introduce you with a dish which I'm going to prepare today. That is called Rajor in some area, or it is called Bhatki Jaw, Bhatti Jaw. That means bhat is an ingredient that is called your black soya bean, which is very much popular in Uttarakhand. Let me first of all introduce you with my all of ingredients which I'm using today. So this is your branded millet, which is also known as Samvak ke Chawal here in Delhi and all. So there that is called Jhangora. Jhangora is very much popular as if you search from the Google and all, you can see a lot of people making kheer with it. This ingredient has specially got vitamin B complex within it. It has got mineral, it has got a lot of protein, and it is very good source. It can be said as powerhouse of protein source. Next, that what I was discussing about is bhat ki dal. If you see, I can just show you. So this dal is your black soya bean, and black soya bean is very much popular because soya bean है तो प्रोटीन तो है ही, प्रोटीन के साथ साथ इसमें फाइबर बहुत अच्छा है. फाइबर होने के साथ इट इज़ वेरी गुड फॉर डाइजेशन. दैट्स वाई the people of Uttarakhand, that is specially I am talking about the Kumaon region, they use this ingredient in lot of form. They make chutney with it, they make dubke, they make a curry with it, they make even the dal bhatki chatkani with it. So today I am going to make bhatki jaw, that is bhatti jaw. And one more ingredient which is exotic ingredient of that place is jakhia. Jakhia is also known as dog mustard or wild mustard. It has got a unique crispness, unique flavor in it, and it is very good for your skin plus inflammation and all. So it has got also health benefit. So what I want to say, if I talk about Uttaranchal, that we say Dev Bhumi, that means there are the ingredients which are source of lot of vitamins, lot of proteins and minerals. So first of all, then further I will keep on telling you what all this. Let me start with the slowly procedure so that you can understand how the dish is going to be processed, right? So should we start? So first of all, I can show you the type of rice. Here the rice which we use in Delhi and all, it is basically basmati and a thinner one. But there they use this little bit of thick rice which is good in starch. So that this rice is very much popular. Even वहाँ पे आपको लाल चावल भी मिलता है. So it has got beautiful flavor if you eat it. Fragrance is also good. So here I will be proceeding with my dish. First of all, we will be taking this bhat. It need to be soaked. So let me soak it. The best is if you are taking for 4 to 5 hours more, then you should take lukewarm water or little bit of hot water. What I am doing is I am just adding this beautiful water. And beautiful water, why I added this word water, beautifully? Because जब हम पहाड़ की बातें करते हैं, पहाड़ का पानी, पहाड़ की हवा, वो कभी भुला ही नहीं भूलता. I have been to that place and it was wonderful and fabulous place. So I love this recipe because it is simple, but still it requires attention from all over the world. And foreign people love this simplicity, but India, being at the regional cuisine, they should also understand what actually it is. So I have soaked this bhat, you can see it. Next, what is required is soaking of this rice and this branded millet. So we'll soak it. So I will just, it has been soaked and it has to be kept for 4 to 5 hours. Then I will be doing is, I will be grinding it. Let me send it for grinding. So I will be using this because there they use silbatta. सिलबट्टा जैसा हम सबको पता है ग्राइंडिंग स्टोन वी नॉर्मली यूज़, बट यहाँ तो सिलबट्टा
कौन चलाएगा, आधे लोगों को चलाना भी नहीं आता, तो वी यूज़ मिक्सी ओवर हियर. सो मिक्सी में हमने इसको अगर सोक किया हुआ है, तो दीज आर सोक्ड वन. सो विल मेक a rough paste of it, we'll grind it. That means roughly, not fine. So we'll just make a paste of it. I request, please do it for me. Till that time it has gone for that thing, for the grounding part. There's one more thing. This dish doesn't contain any salt within it while cooking. Normally what we do, this dish doesn't contain any chili within it. No tampering, nothing, a simple porridge. And that too a porridge made of with a black bean and barnyard millet. So what we'll doing, till that time it is being grounded, or it can be, we can say it is being converted into a rough paste. Let me show you, they normally use namak, salt, that too flavored salt. And in every village if you go to, because I have been to district Almora and that Kumaon, that particular region belt of that, you can see this type of salt everywhere. Even if you don't have any curry or something like that, people love to have this salt with your roti also. So it has got a lot of things. So what we will do for that, making this salt, I am adding this garlic. I'll be adding this chilies. Then ये भी काम सिलबट्टे का ही है, लेकिन अमाउंट कम है, सिलबट्टा है नहीं, तो आई थॉट लेट मी यूज दिस मोर्टल एंड पेस्टल. इट विल टेक टाइम बट इट विल कम इन अ गुड वे. सो विल बी जस्ट डूइंग दिस. So till that time it's going on. This is roughly mixed or pureed, you can say, the dal, that is a black soya bean. So good in color, so good in taste. Even you can see the fragrance of soya bean is superb. So let me start with my first dish, that is called bhati jaw. It is simple. I have started with the pan, putting little bit of water to it. I will be adding this rice, starchy rice to it, and this soaked barnyard millet, jhangora. But this should be in less quantity as compared to your rice and black beans, because this is basically giving a power push to that dish, plus making it a little bit of, so that the water and this dal doesn't separate. So it will give you a consistency. So I am adding just 2 spoons of it, or okay, 1 more spoon is fine, because according to this. Now we will be adding this bhat ki dal ka paste. This dish is superb. This ingredient bhat, very good in digestion. So I have added, I think, enough amount of it. Just stir it once and let it cook. पहाड़ों में क्या करते हैं लोग, कढ़ाई का यूज़ करते हैं, लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं, उसमें ये डिश को बना देते हैं, अपना काम भी करते हैं, धीरे धीरे स्लो फ्लेम में ये पकता रहता है. पकने के बाद आपको पता है जो आपके राइस के स्टार्च है, जो आपकी दाल का प्रोटीन है, प्लस जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस हैं, जो बाकी और विटामिन, सब चीज़ें धीरे धीरे, ये सब चीज़ें क्या होती हैं उसमें धीरे धीरे, जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे मेथड इज कॉल्ड सिमरिंग, हम उसको धीरे धीरे सिमर करते रहते हैं. और उससे क्या होता है, आपने वर्ड पढ़ा होगा, सुना भी होगा, स्टीविंग एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं नॉर्मली. तो जब उसको हम करते हैं, धीरे धीरे पकाते हैं, तो पकाने से एक फ्लेवर, उस जो इंग्रेडिएंट्स है वो अपने फ्लेवर इम्पार्ट करते हैं. जब तक ये बन रहा है तब तक ठीक, क्योंकि इट विल टेक टाइम, इट्स बेटर हाउ मच यू कुक इट. पीपल नॉर्मली ऐड मोर वाटर टू इट एंड लेट इट कुक स्लोली. सो विल प्रोसीड to our next dish, which is very good accompaniment with this, and that is radish, मूली. मैंने यहाँ पे दिल्ली में आया and I have seen people of Haryana and all lot of eating मूली खाते रहते हैं salads में, even they have displayed. But पहाड़ों में मूली के पत्ते और मूली दोनों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. कोई सब्जी नहीं है तो अगर आपके गार्डन में मूली उगी है तो लोग क्या करते हैं, ऊपर से मूली के पत्ते लिए, उसकी भुर्जी, मूली की भुर्जी.
पत्तों की भुर्जी ना, तो इट इज़ डिश है क्योंकि उसमें कैल्शियम भी है. इट इज़ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी ऑल्सो, दिस रेडिश लीफ. So I have taken this radish, I have peeled it, washed it. So I will first of all making this bhurji. Some more because दो मूलियाँ हैं और क्वांटिटी हम लोग बना रहे हैं, तो ओके. ये ऑलरेडी वॉश्ड है, सब कुछ करके मैंने रखा हुआ है. इट इज़ रेडी. सो जस्ट इसको कट कर लेते हैं. आप में से अगर किसी ने ट्राई की होगी, मैं एक्चुअली आई हैव बीन टू सिक्किम में ऑल्सो, वहाँ भी देखा, वहाँ भी लोग बहुत लोग खाते हैं. तो पहाड़ी एरिया में ये मूली की भुर्जी, पत्तों की भुर्जी बहुत अच्छी होती है. और इसमें ज़्यादा कुछ डालना नहीं है. द इंग्रेडिएंट्स व्हाट विल बी यूजिंग इज तेल. जो यूज़ होता है कुकिंग में सबसे ज़्यादा होता है वहाँ पे घी या सरसों का तेल. सरसों का तेल आपको हर टाइम पे मिल जाता है, वहाँ पे लोग यूज़ करते हैं. रिफाइंड तो अब धीरे यूज़ करने लगे. सो आई हैव टेकन दिस मस्टर्ड ऑयल. देखिए कितनी सिंपल. जब आप इसको टेस्ट करेंगे, मतलब इसमें ओवर कुक नहीं करना है. अगर आपने मूली के पत्तों को ओवर कुक कर दिया तो फिर आपको फ्लेवर, वो क्रंचीनेस फील नहीं होगा. लहसुन का तड़का, लाल मिर्च की छौंक और ऊपर से ये मूली के ये जब आप खाओगे इस भटी जौ के साथ या इस राजड़ के साथ, तो आपको जो वो सॉफ्टनेस मिलेगा, इसकी जो क्रंचीनेस मिलेगी, यू विल से यस शेफ यू हैव मेड समथिंग गुड एंड वी केम टू नो कि दिस डिश इज़ वेरी गुड. ठीक है, तो थोड़ा गर्म हो रहा है ऑयल. मस्टर्ड ऑयल नॉर्मली हमें सभी को पता है इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ. तो दैट्स वाई पीपल नॉर्मली इन हिली एरियाज दे प्रीफर मस्टर्ड ऑयल. प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि प्रॉब्लम आती है कि जब लोग एडल्ट्रेशन के चक्कर में, इसके चक्कर में, और इवन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर इसकी ना स्मेल आती है, अगर मस्टर्ड ऑयल प्रॉपर्ली हीट नहीं किया तो फिर आपको वो चीज़ें मिलती रहती हैं. तो थोड़ा इसको एक बार हीट कर लेते हैं. अभी थोड़ा गर्म हो रहा है. आप देखेंगे इवन वहाँ पे तो मैंने देखा है, जब मैं घूमने गया उत्तरांचल साइड, बहुत सारे लोग, अभी तो क्रीम आने लग गई है आगे, लोग पहले सरसों का तेल का ही मालिश किया करते थे. तो इसका मतलब इसमें कितनी बेनिफिट है. खाने से लेके, लगाने से लेके हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हैं. सो ये जो चीज़ें हैं, पहाड़ की लाइफ बहुत टफ़ होती है. टफ़ होने के कारण लोग, आप देखोगे तो आपको पहाड़ी लोग हर जगह होटल से मिलेंगे और आपको फिट मिलेंगे अगर वो वहाँ पे रहे हैं. बिकॉज द क्लाइमेटिक कंडीशन, जो वेदर वहाँ का है, वो उनको चीज़ों के लिए वो करता है. तो मेरे ख्याल से तेल आप देख सकते हैं गर्म हो चुका है ना. तो इसमें हमने डाल दिया गार्लिक. थोड़ा सा गार्लिक मैं ज़्यादा डालता हूँ. अब ये गार्लिक का यूज़ ज़्यादा क्यों होता है, आप देखेंगे तो पहाड़ में क्या है ना, ठंडक है, और गार्लिक हम क्या मानते हैं, इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है. और कुछ नहीं, एक दो मिर्ची ली मैंने ड्राइड, उसको बस. जब ये हो गया, थोड़ा सा आप देखेंगे गार्लिक बर्न हो चुका है, थोड़ा सा मतलब स्मेल आ चुका है आपको, इफ इट्स विजिबल. aroma of garlic, I think you can feel, you can smell it. तो इसमें क्या डाल दिया मैंने, इस मूली के पत्तों को. वुडन स्पैचुला शुड इज गुड. थोड़ा सा इसको होने के बाद अमाउंट के हिसाब से, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक. है ना सिंपल डिश, लेकिन कभी खा के देखना. वो लहसुन की महक और जैसे मैंने कहा था लाल मिर्च का छौंक, वो आपको अपने आप में ही एक टेम्पटिंग लगेगा. थोड़ी देर इसको भी होने देते हैं. चक्कर क्या होता है ना कि वहाँ पे जो डिशेस हैं, जो मूली मिल रही है आपको, इट इज़ वैसे यहाँ पे हम ऑर्गेनिक बोलते रहते हैं, वहाँ एवरीथिंग यू गेट ड्यू टू वाटर, सब कुछ अच्छा होता है. अब यहाँ पे क्या होता है, मूली के पत्ते हम नहीं खाते, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, वी आर नॉट श्योर. बट द फार्मर्स हु आर ग्रोइंग इट, दे आर अवेयर कि भैया हम क्या खा रहे हैं क्या नहीं. तो वो जब इस चीज़ को यूज़ करते हैं, खाते हैं, और सबसे ज़्यादा कुछ भी नहीं बना, मूली मिली और दोनों उसका यूज़ कर लिया. ठीक है, तब तक ये भी देखिए कितना अच्छा हो रहा है.
If you see the texture, it's going on. Still little bit of hot water need to be added to it, क्योंकि consistency अभी भी आई है, but it need to be cooked more, right? So this is ready. I'm putting in my bowl. Later on, we'll be using it. Okay, you can see the perfect blend of it. Okay, that I will be using later on while having it. अब तब तक हमने पत्ते तो यूज़ कर लिए, मूली का भी यूज़ कर लेते हैं. सो मूली रेडी. अब ये क्या बनाने जा रहे हैं हम इसकी. यहाँ पे तो लोग सैलेड में हम लोग ऐसे रॉ खाते हैं, रॉ भी खा सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि ठंडा होता है. ठंडे होने के कारण जैसे हम बोलते हैं यार मूली खाने से ना गैस बन जाती है, मूली खाने से ऐसा होता है. उस चीज़ को भगाने के लिए नॉर्मली आपने क्या करना है, इसको कैसे भी शेप में कट कर सकते हो. तो मैं ज़्यादा वो नहीं कर रहा इसमें. आई एम जस्ट कटिंग दिस. ठीक है, मूली कट कर ली. उसके बाद अब इसको सरसों का तेल यूज़ किया, तो क्यों ना इसको हम थोड़ा बहुत घी से बनाते हैं. घी में इसका स्वाद एक अलग ही आएगा. तो एडिंग घी इन द सेम पैन. यू कैन यूज़ सेपरेट भी. ज़रूरी नहीं कि बोलो कि सर आपने बताया था कि वो खाना है तो एक ही दिन में दोनों बना के खाऊंगा. आपकी मर्जी, पत्ते खाने हैं जब पत्ते खाओ, जब मन करे मूली खाना है मूली खाओ. बट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू एंड लेट यू नो कि हाउ इट इज़ गोस. आपने बाकी चीज़ देखी होंगी जहाँ पे लोग जीरा का बहुत यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ में धनिया बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. अगर धनिया के बीज आप मसालों में देखोगे तो यहाँ पे इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो जखिया मैंने आपको बताया, ठीक है, तो जखिया का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया, डॉग मस्टर्ड या वाइल्ड मस्टर्ड के नाम से भी है. अगर आप इसको साइंटिफिकली पढ़ेंगे तो उसमें बोलते हैं इसको क्लियोम विस्को, ठीक है ना, विकोसा या विस्कोसा भी बोलते हैं. तो इसमें क्या हो गया, इसकी जस्ट टेम्परिंग आप देखोगे, ये घी गर्म हो रहा है और इसको आप टेम्पर करोगे ना, तो थोड़ा सा डालता हूँ मैं अपने हिसाब से, आपको दिखाऊंगा कितना अच्छा कलर आता है इसका. इसको होने दीजिए. इसमें थोड़ा सा मैंने डाल दी हल्दी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हल्दी, क्योंकि आपको पता है कि हल्दी उसका काम करती है, एंटीबायोटिक के लिए भी काम करती है. प्लस आई एम एडिंग दिस. वहाँ इसको बोलते हैं सिजाना, मूली को सिजाना. दैट मीन्स दे आर नॉट कुकिंग इट, जस्ट थोड़ा सा कर रहे हैं, थोड़ी सी इसकी सॉफ्टनेस, थोड़ा टेस्ट डेवलप हो जाता है. सो इट यू नो ये हो रहा है. लेकिन नमक, थोड़ा सा नमक डाल देते हैं. ओके, इसको भी होने देते हैं. थोड़ी देर इसको भी होने दीजिए. सो यहाँ पे ये भी आपकी डिश. देखो अब क्या हो गया, अगर मैं बताऊँ इसकी कंसिस्टेंसी देखूँ, आप देख सकते हैं कितना एकदम, ये मतलब ये खाने में इतना अच्छा है, देखने में भी इतना अच्छा लग रहा है, फ्रेश है सब कुछ और लाइट है. ठीक है, इसके साथ नॉर्मली ये और ये एक कंप्लीट मील हो जाता है. लेकिन क्या है, जब हम इधर पे हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने रीजनल क्यूजिन को करें और लोगों के टेस्ट के हिसाब से बनाएं, तो मेरे दिमाग में आया यार एक वेजिटेरियन डिश है, और यहाँ दिल्ली में किसी को भी पूछो यार मैं आपके घर खाना खाने आ रहा हूँ, तो मेरे को हर जगह कहीं भी जाओ और बीइंग एज ए वेजिटेरियन वो क्या खिलाएंगे आपको, छोले या पनीर. तो मैंने बोला इसका मतलब पनीर तो है जो सबकी पसंद है. तो इसमें ऐड अप करने के लिए what I have done is I have used this paneer cottage cheese that I have done the pan sharing of it. Just share the paneer, so it will be a ready dish. ठीक है, so it's also, you can say if you want little bit of turmeric because color is still that what I want is missing. Superb. So it is also ready.
See, the dishes which I am saying you are very easy to make and taking less of time, so that you can work, you can have your dishes, along it everything will be ready. ठीक है, तो इसको अभी पकते पकते 45 मिनट तो हो ही गए हैं. तो ये भी देखिए कितना अच्छा पक के एकदम धीरे धीरे थिक हो चुके हैं. जितना पकाएंगे और जितना हिलाते रहेंगे, स्टर करते रहेंगे, वो उतने ज़्यादा आपका स्टार्च प्लस इसकी प्रोटीन वो डिज़ोल्व इसमें होती रहेगी एंड इट विल बिकम थिक. ओके, सो विल स्टार्ट विथ आवर पनीर. पनीर सिंपल सा पनीर लिया. अब पनीर को खाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, कैसे खाया जाए. तो मैंने बोला सोचा यार क्यों ना इसको पैन शेड किया जाए. पैन शेड के लिए क्या करना है, पनीर को लो, डाइसेस करो. जैसे आप लोग यहाँ पे बहुत सारे अचारी पनीर या ऐसे वैसे डिश बनाते हैं, कबाब. जब आपका ये शेयरिंग हो जाता है, उसको दोनों एंड से कट कर दो. थोड़ा एक साइड से, उसके बाद साइड टिल्ट करो. एक साइड से कट किया, उसके बाद इस साइड से कर दिया, अब दूसरे साइड से कर दो. अब ये हो गया सिंपल सा. आप देख सकते हैं दोनों तरफ से आपका ये ओपन है. इसमें हम स्टफिंग डाल देंगे. स्टफिंग किस चीज़ की डालें. और पहाड़ के बात करें तो बिन पुदीना बिन धनिया, मेरे ख्याल से पहाड़ में तो कोई डिश बनती ही नहीं है. और पहाड़ की आप पुदीना देखोगे तो इट टेस्ट सो गुड. इवन जो नदियों में जो मतलब क्या होता है ना, वहाँ आप किसी जो कोई भी कुमाऊँ के रीजन के ब्लॉग करते होंगे, उनसे पूछना पुदीना, तो वो बोलेगा यार जो नदी के फ्रेगरेंस है, नदी के साइड में जो हमारे पुदीना रहता है, उसका टेस्ट इतना अच्छा है, इतनी खुशबू इतनी दूर तक आती है, वो बात ही अलग है, वो पानी का स्वाद ही अलग है. सो आई हैव मेड टिल दैट टाइम आई थिंक दिस सॉल्ट इज़ रेडी. जो हमने पीसा था नमक और लहसुन, उसमें हमने क्या कर दिया है, बहुत सारा नमक और ऐड कर दिया. कुछ तो करके लेके आए हैं, कुछ और कर देते इसमें नमक ऐड. तो आप इसको देख सकते हैं ये कैसा बन गया, एक फ्लेवर्ड सॉल्ट है ना. या आप इसको चटनी की तरह भी सोच सकते हैं, ड्राई वाला. लेकिन इसीलिए बोलता हूँ ना, ये सूखने के बाद और ड्राई हो जाएगा. तो क्योंकि फ्रेश बना है इसीलिए ये भी ऐसे गीला गीला सा आपको लग रहा है. इसका एरोमा, इसका टेस्ट लहसुन का जो आता है वो टोटली डिफर होता है. तो मैं इसी की ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, आई हैव यूज्ड दिस पेस्ट व्हाट आई मेड विथ योर मिंट एंड कोरिएंडर प्लस दिस सॉल्ट. इस सॉल्ट को डालें तो नमक डालने की जरूरत नहीं. तो अब सॉल्ट में क्या क्या था, सॉल्ट में था हमारा गार्लिक, सॉल्ट में था हमारा ग्रीन चिल्ली, और सॉल्ट में सॉल्ट था. ठीक है, तो फिर इनको मैंने मिक्स कर लिया और इस पनीर के अंदर स्टफ़ कर लिया. ओके, थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, ऐसे दूसरे को भी करते हैं. ठीक है, इसको हम एक प्लेट में रख लेते हैं. अब इसको हम क्या करते हैं, इस पनीर को हम करते हैं पैन शेयर्ड. दैट इज़ मतलब क्या है, पैन शेयरिंग क्या है इसमें. शेयरिंग मतलब हम घी या ऑयल में किसी कुकिंग मीडियम है, उसको गर्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए कुक करते हैं. पनीर कैन बी ईटन रॉ ऑल्सो, पनीर कैन बी ईटन इन वेरियस फॉर्म ऑल्सो. लेकिन जब हम शेयरिंग करते हैं तो उसमें एक, जैसे घी में कर रहा हूँ, तो घी का फ्रेगरेंस प्लस जो टेक्सचर होगा इट विल बी लिटिल बिट क्रिस्प. उसमें मैंने बताया नमक नहीं है, कुछ नहीं है. तो जब हम ये सब्जी खा रहे हैं प्लस हम जो मूली ले रहे हैं और ये पनीर की सॉफ्टनेस ले रहे हैं, तो एक ब्लेंड जो आएगा, यू पीपल जस्ट ट्राई दिस. ओके, सो लेट मी शो यू. See, every recipes, whatever ingredients, whatever accompaniments I'm making today is very much easy to make, and you know it's very good. So what I'll be taking is little bit of ghee. ठीक है, घी के बाद जो पनीर के पीसेस लिए थे मैंने, धीरे धीरे और पीसेस लिए थे. तो कैसा लग रहा है अभी तक? कुछ सीखा आप लोगों ने? कुछ समझ आया?
पहाड़ का खाना साधारण, सिंपल, लेकिन क्या है, हेल्थ से भरपूर। हर इंग्रेडिएंट्स की अपनी अपनी फीचर्स हैं, हर इंग्रेडिएंट्स के अपने अपने न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं, और वो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ भी इतने इम्पॉर्टेंट है कि हम सबको इसकी ज़रूरत है। और ख़ासकर इस पैंडमिक टाइम पे तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको हम पैन शेयरिंग कर देते हैं। देखो घी गर्म हो चुका, आप ये आवाज़ आप सुन सकते हैं शेयरिंग की। तो इसको होने देते हैं, थोड़ी देर रख दीजिए, इसको होने दीजिए। तो तब तक हमारा क्या क्या बना दिया मैंने अभी तक। आपके लिए मैंने भटीजाओ तैयार हो गया आपका, उसका अकम्पेनीमेंट सीजा हुआ टेम्पर्ड विथ जखिया। जखिया का और क्या नाम बताया मैंने आपको, वाइल्ड मस्टर्ड या डॉग मस्टर्ड, है ना। और इसकी जब जखिया आप कभी खाएंगे, चाहे इसी में भी नहीं, दाल के छौंक में, गहत की दाल या किसी में भी इसमें आप छौंक ला के देखेंगे, इसकी जो क्रिस्पनेस है वो अलग है, वो पूरा ही अपने में एक अलग है। दूसरे मैंने आपको क्या सिखाया, मूली के पत्तियों की भुर्जी। यहाँ पे आपने मूली का साग, और उसके अलावा और क्या है वहाँ पे, अगर आप कुमाऊं रीजन में जाओगे तो लोग यहाँ पे पालक ज़्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन उस साइड में आपको मिलेगा बथुआ, ज़्यादा पॉपुलर है। उस साइड में आपको मिलेगी चौलाई, जो यहाँ पे बहुत सारे लोग कम यूज़ करते हैं। वहाँ पे आपको चौलाई और बथुए का साग लोग बहुत प्रीफर करते हैं, अलग अलग डिशेस में, अलग अलग चीज़ों में। वाओ, ब्यूटीफुली इट कम आउट, सी यू कैन सी द शेयरिंग ऑफ इट, सी द कलर। Okay, so the dish is almost ready, the with it accompaniments and all। क्या हो गया, कुछ और ट्विस्ट डालना है। तो मैंने सोचा यार, जब इतनी चीज़ें लोगों को बता रहे हैं यार, पहाड़ी खाने के बारे में बता ही रहा हूँ, तो क्यों ना कुछ हरी सब्जी के बारे में और बताया जाए, मूली के पत्ते के अलावा। तो मैं अपने साथ मेरे गार्डन में कुछ ये पत्ते हो गए थे, अगर आप इसको जानते हो, यहाँ भी मिलता है मार्केट में, इसको बोलते हैं लाई। अब ये लाई का जो इट इज़ फ्रॉम योर मस्टर्ड फैमिली, इसका टेस्ट अलग से आप खाओगे, पंजेंसी इसकी वो चीज़ें जो होती है ना, एक अलग से आपको स्वाद मिलेगा। और पहाड़ में इसको बहुत ज़्यादा खाते हैं एज़ कम्पेयर टू सरसों। हमारे पहाड़ों में लोग कम यूज़ करते हैं, लेकिन लाई का साग बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, पीपल लव टू हैव दिस लाइक। ठीक है ना। तो मैं इसका गार्निश करूँगा, लिटिल बिट ऑफ विथ आई विल मेक गार्निश, जो भी बाद में बनाऊँगा आपको दिखाऊँगा। सो आई थिंक आई एम रेडी विथ माई डिश। गार्निश के लिए मैंने ये यूज़ किया है, गार्निश के लिए इवन खीरा। और आप कभी अब हल्द्वानी से आप ऊपर जाओगे तो रास्ते भर आपको भुट्टे वाले दिखाई देंगे। इसका मतलब कॉर्न इज़ ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इट। So what we'll be doing is we'll be taking the ribbon of it, जिसके कारण मैं उसको बाद में रोल कर सकूं। तो जस्ट टेक दिस, ऐसे करके बनाते हैं। ठीक है, ऐसे रोल करके आ जाते हैं। इन रोल को इफ यू वांट यू कैन ऐड लेमन जूस टू इट, यू कैन ऐड दिस सॉल्ट टू इट एंड यू कैन रोल इट। ठीक है, तो आई थिंक I have told you everything. Now what is remaining is we'll go for our plating. Okay, now we'll do the plating. So we'll go for the plating. So सबसे पहले, और क्या है ना, इसको कितना भी खाओ बहुत जल्दी हजम हो जाता है। So we'll pour this porridge. तो इसको तो नॉर्मली बाउल में भी खाओ, यू कैन सर्व, बट प्रेजेंटेशन के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आई थॉट ओके आई विल गो इन दिस वे। ठीक है, टॉप विथ यूर दिस पैनशेट पनीर। परफेक्ट। अब इसके साथ मूली का ये पत्तियाँ, उसके बाद विल यूज़ दिस जखिया। कितना अच्छा लग रहा है, देखिए आप कलर अगर फोकस करेंगे
तो इस जखिए का जो दाने हैं ये देखने में इतना सुंदर लगता है कि मुझे बाल मिठाई की याद आ जाती है। छोटे छोटे जखिए के बीज। और मैंने कहा था आपसे इस लाई की बात की थी, तो इसको हम एज ए गार्निश यूज़ करेंगे। जस्ट रोल कर लेते हैं इस लीव्स को, ठीक है। तो जो लीव्स हैं रोल कर दिए, इनको श्रेड कर देंगे। ठीक है, श्रेड कर दिया, इसके ऊपर ये डाल दो। आप सोचेंगे कि ग्रीन ग्रीन हो रहा है ज़्यादा, है ना, लेकिन क्या है, इसके ऊपर हम डालते हैं चटनी, प्लस अब क्या डालें, तो आपने अगर देखेंगे कुमाऊं साइड में, इस साइड में लोगों के पास जब ये कद्दू पक जाता है, पम्पकिन दैट इज से, या कुछ खरबूजा होता है या और जो चीज़ें होते हैं, तो वो बीज, बहुत सारे लोगों को बीज खाने की आदत से वो चीज़ें आती है। तो दिस फ्लैक्स सीड्स और ये सारी सीड्स जो हैं, इनके मिनरल्स के लिए, विटामिन्स के लिए, प्लस दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट ऑल्सो। सो ऑन टॉप ऑफ इट आई विल बी यूजिंग लिटिल बिट ऑफ दिस सीड्स। तो यहाँ पापड़ खाया जाता है, यहाँ ये बीज के साथ खाइएगा। और इसके ऊपर I will be using it. Sprig, I'm not getting it. Okay, चलिए। ठीक, और ये तो हो गया, लेकिन इसके साथ अगर ये नमक रख दें या बाउल में रख दो आप सेपरेटली, बट आपको दिखाने के लिए ताकि आप भूलो नहीं, I will be keeping it here only, so you can have this look also. So I think I have done justice to this cuisine and made a perfect dish, which is blend of your this soft porridge, delicious seared pan paneer with mint and coriander in it, and with top of it with your roasted seeds and mooli ki, that is radish leaf bhujia, plus your radish tempered with jakhia. So you can see the plating, simple, but I can assure you, just have a taste of it and try at your home, you will find it very good. Thank you.